TGIC ने बॉन्ड्स की सूरत में करोड़ की डिपॉजिट रकम हासिल की है। उनमें से करोड़ कर्ज मुआफी के लिए, करोड़ किसान भरोसा स्कीम के लिए और करोड़ सुनवाडा बोनस स्कीम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये बात वजीर श्रीधर बाबू ने कही। उन्होंने इस रकम की तकसीम के हवाले से तफसीलात फराहम की। TGIC డిపాజిటెడ్ అమౌంట్ ఇప్పటి వరకు 8476 కోట్ల రూపాయలు. దీన్ని ఉపయోగించుకోవటం ప్రత్యేకంగా రైతుకు సంబంధించిన సంక్షేమం, రైతన్నను కాపాడాలనే ఒక ఆలోచనతో రుణమాఫీ విషయంలో 2146 కోట్ల రూపాయలు, రైతు భరోసా కింద 5463 కోట్ల రూపాయలు, సన్న బియ్యానికి సంబంధించిన బోనసు 947 కోట్ల రూపాయలు, మొత్తం 8557 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తీసుకున్న బాండ్ రూపేణ వచ్చిన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే కార్యాచరణ చేసుకుంటూ పోతూ KTR ने बहुत ज्यादा हाइप पैदा की, लेकिन आखिरकार वो खुद ही दब गए। चामला किरण कुमार रेड्डी भूंगिरी के MP ने कहा कि KTR का माइंड गेम बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी छोटी सी मंतिक वो कैसे नजरअंदाज कर गए। चामला किरण कुमार रेड्डी ने KTR की हिकमत अमली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि KTR ने बड़ी बात की, लेकिन असल हकीकत से वो पीछे हट गए। నేను ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నా 24 గంటలలో పెడుతున్నా, అందరు తాట తీస్తా, వాస్తవాలు చెప్తా అని చెప్పి నిన్న పొద్దున 11 గంటలకు ప్రెస్ మీట్ పెడితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు కాకుండా అన్ని సంఘాలు, ఈ రాష్ట్ర శ్రేయోభిలాషులు చాలామంది ఏందో మరి కేటీఆర్ గారు చాలా పెద్ద విషయం చెప్తారన్న విషయంలో అందరూ కూడా అంటే బాగా పబ్లిసిటీ కూడా ఇచ్చారు. దానికి వస్తుండు సార్ వస్తుండు, పెద్ద మూమెంట్ తీసుకొస్తాడని. తీరా చూస్తే ఏంటంటే కొండంత రాగం తీసిండు, ఏదో పాట పాడిపోయాడు. ఆ సప్పుడు లేదా పాటకు, అర్థం లేదా పాటకు, లేదా కొండనంతా దొవి ఎలుకను కూడా పట్టలేకపోయాడు. ఆ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇకపోతే హైడ్రోజన్ బాంబు వేస్తాడేమో, మొత్తం అల్లకల్లోలం అయిద్దాం రాష్ట్ర రాజకీయాలు అనుకుంటే ఉల్లిగడ్డ బాంబు కూడా వేయకుండా పోయాడు, చిన్నది పిల్లలు ఆడుకునేది. ఇదంతా దేనికంటే మీ అందరికీ ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా విష ప్రచారం చేయాలి, ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎట్లా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టాలి, ఎట్లా ఈ ప్రభుత్వం గురించి చెడు ప్రచారం చేయాలన్న ఉద్దేశం క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా, ఇక నుంచి కేటీఆర్ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లు ఏది కూడా గతంలో పెట్టినైనా పెట్టే ప్రెస్ మీట్లకైనా అథెంటిసిటీ లేదనేది ఆయనంతలో ఆయనే ప్రూవ్ చేసిండు. నిన్న అమెరికాలో పోయి చదువుకొచ్చినా అంటాడు, ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా హైయెస్ట్ వొకాబులరీ ఉన్న ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతా అంటాడు. ఇది 48 గంటల సమయం తీసుకుండు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి. ఏం గ్రౌండ్ వర్క్ చేసిండో తెలియకుండానే ఆయన గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎట్లా ఇరకాటంలో పెట్టాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా ఇరకాటం పెట్టాలి, ఎట్లా ప్రభుత్వం గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడాలన్న ఆవేశంతో వచ్చిండు తప్ప తెచ్చిన కట్ట కాగితాలలో ఏం కాగితాలు తెచ్చిండు, ఏం చెప్పిండు అనే విషయాన్ని మర్చిపోయిండు. ఆయన మర్చిపోయిండా, తెలివి తక్కువ పని, దద్దమ్మ లెక్కలా తెలియలేదు. HCU कंच गुची बावली की 400 एकड़ जंगलाती जमीन को रेहन रखकर बैंक से कर्ज लिया गया है, ऐसा TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस के वजीर इस बात से इनकार कर रहे हैं। पहले आप आपस में बैठकर साफ साफ बात करके बाहर आएं। KTR रियासत में मौजूद दोनों दहली पार्टियां एक जैसी हैं। एक तो वो है जो दहली वालों के थैले उठाती है, दूसरी वो है जो दहली वालों के जूते उठाती है। उन दोनों पार्टियों की वजह से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। KTR నిన్నగాక మొన్న హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో 400 ఎకరాల భూమిని, అటవీ భూమిని ఇవాళ బ్యాంకులకు కుదబెట్టి పైసలు తెచ్చినామని చెప్పి నిన్న PCC ప్రెసిడెంట్ మహేష్ గౌడ్ గారు చెప్తున్నారు. కానీ మళ్ళీ ఇంకా కూడా స్వయంగా PCC అధ్యక్షుడే చెప్తుంటే కుదబెట్టినామని ఏం లేదని చెప్పి ఇంకో మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూర్చోండి ఒక కాడ, కుదబెట్టినరా, అమ్మినరా, లేకపోతే మొత్తం దోసుకున్నారా, ప్లాట్లు కొట్టి మొత్తం లోపలనే కొట్టేసినరా, ఇది ఏందో కానీ మీరు మాట్లాడుకొని స్పష్టంగా బయటికి రండి, ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు. మేము స్పష్టంగా ఆరోపిస్తా ఉన్నాం, మొన్న జరిగింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూముల్లో కంచె గచ్చిబౌలిలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఫ్రాడ్ తెలుసు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయాల గురించి కూడా మీకు తెలుసు. ఒకటి మాత్రం పక్కా, రెండు ఢిల్లీ పార్టీలు కూడా, ఒకటేమో సంచులు మోసే పార్టీ, ఇంకోటేమో చెప్పులు మోసే పార్టీ.
ఢిల్లీ వాళ్ళ చెప్పులు మోసే పార్టీకి, ఢిల్లీకి సంచులు మోసే పార్టీలు రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండు పార్టీల వల్ల తెలంగాణకు జరుగుతున్నది అన్యాయమే, దొందే. ఇద్దరు కూడా దుర్మార్గులే, ఇద్దరు కూడా తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తున్న వాళ్ళే. राजीव युवा विकिस्म दरखास्तों के अमल में संगीन मसाइल पेश आ रहे हैं। सर्वर की खराबियों और तकनीकी मुश्किलात की वजह से दरखास्तों का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। इंटरनेट सेंटर्स और मी सेवा मराकज़ के पास घंटों इंतजार कर रहे हैं दरखास्त दहिंदगान। कई बार दरखास्त आखिरी मरहले तक पहुंचने के बाद सर्वर रुक जाना, दरखास्त जमा कराने के बाद फॉर्म डाउनलोड ना होना और दोबारा अप्लाई करने पर पहले ही दरखास्त दी गई है जैसा पैगाम आना। उन सब बातों की वजह से दरखास्त दहिंदगान में बेचैनी और नाराजगी देखी जा रही है। एक तेलुगु एनआरआई को शादी के लिए मैट्रिमोनी साइट पर मॉडल की तस्वीर दिखाकर 2.68 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया। मध्य प्रदेश की समरन नामी खातून ने अपने भाई उशाल के साथ मिलकर मुख्तलिफ बहानों से रकम बटवारी। वीडियो कॉल पर शक होने के बाद वो अमेरिका से भारत आकर पुलिस से शिकायत दर्ज कराया। तहकीकात में पता चला कि खातून शादीशुदा है और इस रकम से कर्ज चुकाया और गाड़ियां खरीदी गई थीं। साइबराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 45 दिनों में चोरी या गुम होने वाले 1060 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए, जिनकी मालियत 18 करोड़ है। ये फ़ोन CCS IT सेल और सोशल मीडिया टीमों ने मरकज़ी आलात की शनाख्ती रजिस्टर पोर्टल के जरिए बाजियाब किए। बरामदशुदा फ़ोन्स को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िदा एक तकरीब में मालिकान के हवाले किया गया। DCP क्राइम्स LC नाइक ने शहरियों से अपील की कि वो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स करीबी पुलिस स्टेशन या पोर्टल के जरिए रिपोर्ट करें। गुरुकुल स्कूलों में 5वीं जमात में दाखिले के इम्तिहान के नताइज में बदनज़मी देखी गई। एक मामूली गलती की वजह से एक तालिब इल्म को रियासत में पहला रैंक आने के बावजूद नशिस्त नहीं मिली। 53 दीगर तलबा भी मुतासिर हुए। हुक्काम और BC कमीशन को खतूत लिखने के बावजूद तलबा को मायूसी ही हाथ लगी। पहले राउंड की मेरिट लिस्ट सिर्फ PDF फाइल्स की शक्ल में दी गई, जिससे वालिदैन उलझन में पड़ गए। वीर हनुमान जयंती का जुलूस आज सुबह राम मंदिर गोलवीगुदा से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुआ। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ शाम को टिडबांड सिकंदराबाद के हनुमान मंदिर पहुंचेगा। सीनियर पुलिस अफसरान बशमूल CV आनंद IPS और CP हैदराबाद जुलूस की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कर रहे हैं। ये निगरानी सरफराज कैमरों और ड्रोन्स के जरिए की जा रही है। अदलबाद जिला के दीगाम गांव में कांग्रेस की पदयात्रा को सैलाब मुतासरीन ने रोककर एहतजाज किया। गो बैक कांग्रेस के नारे लगाते हुए मकामी लोगों ने साबिक MLA राठौड़ बापूराव और दीगर लीडरों को घेर लिया। मुजाहिरीन ने कहा कि बरसात आते ही पानी घरों में घुस जाता है, गंदा पानी बदबू, सांप और बिच्छुओं से परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया कि इंदिरामा मकानात नहीं, पहले सैलाब का मसला हल करें और 130 खानदानों को इंसाफ दे। అప్పుడు రాజశేఖర్ ఉండే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండే చేసినాం మళ్ళా తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాలేదు మళ్ళా రేవంత్ అన్న 100% తీసే బాధ్యత మాది నమ్ముతారా 100%
మేము మాట మాకు ఇంద్రం ఇల్లు కూడా వద్దు. ఈడ ఇంద్రం ఇల్లు మేము వద్దు. మాకు ఈడ జాగా లేదు. అమ్మ వాళ్ళకి ఎట్లా న్యాయం జరిగిందో అదే రకంగా మీకు కూడా చేసే బాధ్యత నాది. చేసే బాధ్యత నాది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు ఈ ఊళ్ళే ఇప్పుడు మా మొన్నటి ఆనబడి లీజు వచ్చినాయి ఇండ్లల్లా వచ్చినాయా మాకు పాములు తేళ్లు అన్ని వచ్చినా మేము పోరం భరించినాం. మరి ఇప్పుడు ఇండ్లకు ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడెల్లా అమిత్తుండ్రు. ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడెల్లా అమిత్తున్నారు. ఇండ్లు ఇస్తాం, ఇండ్లు లేపెత్తాం. ఏంటికి ఇచ్చుడు మమ్మల్ని, ఏంటికి మగ్గ పెట్టుడు, మమ్మల్ని తీసట్టు ఎత్తయ్య రాదా, లేకుంటే ఈయన సాగుండ్రా నుండ్రి. మరి మా ఓట్ల గురించి ఏంటికి ఆశపడుతున్నారు మీరందరూ? వెయ్యకపోయినా నీవు ఈడ్చబెట్టుండ్రి కదా. తీస్తా లిస్తున్నదన్న మాటనే ఉన్నది కానీ మా ఊరోళ్ళు సాగనియ్యారు. వాళ్ళు పోయిండ్రు, సేఫ్టీలు ఉన్నారు కదా. ఊరోళ్ళు అందరు కలిసిండ్రు. వాళ్ళందరిది అయిపోయింది, మాది ఇంత ఉన్నది. ఇప్పుడు మా ఊరును లేపెడదాకా మేము పట్టినాము కానీ అయినా మీది ఆడోళ్ళకి జాగుతలేదు. ఏం చెప్తాం? ఇప్పుడు కైకిలు పోయి తెచ్చుకొని తినేటోళ్ళము. మేము ఇండ్లు కట్టుకున్నంత మాకు కెపాసిటీ ఉన్నదా? జాగాలు కొనుక్కున్నంత కెపాసిటీ ఉన్నదా? మరి ఏడికెళ్ళి పెడతాం? పొట్టకు తినమంటావా? మేము జాగాలు కొనుక్కొని వేరే తాట పోయి బతుకుతామా? లేదు. टीटीडी हुक्काम की लापरवाही से तिरुमिला में कुछ अकीदतमंद जूतों समेत मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। टीटीडी मुलाजमीन ने तवज्जो न देने पर बेकित जूते पहनकर ही माधवार तक आ गए। वाइकंठम में दाखिले के वक्त विजिलेंस और टीटीडी अमला ध्यान न देने पर अकीदतमंदों ने नाराजगी जाहिर की। अकीदतमंदों का कहना है कि ये सब अमले की गफलत की वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में 5 तलबा पर आसमानी बिजली गिरी। बारिश के दौरान वो सब एक दरख्त के नीचे खड़े थे। वाकये में 2 तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। हरियाणा की ओपी जिंदाल यूनिवर्सिटी में एक नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में छुपाकर हॉस्टल ले जाने की कोशिश की। वो लड़की को सूटकेस में पैक करके ले जा रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया। वाकया के बाद यूनिवर्सिटी में सनसनी फैल गई। इंतजामिया मामले की तहकीकात कर रही है। अहमदाबाद के परशिकार अपार्टमेंट में खौफनाक आग लग गई। एक मां ने बहादुरी दिखाते हुए अपने 2 बच्चों को आग से बचाकर नीचे उतारा। मां की हिम्मत और हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स इस मां की बहादुरी को खूब सराह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में 5 तलबा पर आसमानी बिजली गिरी। बारिश के दौरान वो सब एक दरख्त के नीचे खड़े थे। वाकये में 2 तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। अब है वो बच्ची बैठ गई क्योंकि ये हो गया, ये भाग गया, एक तो उठ गया इसमें। ये 8:04 की घटना है। 8:04 की घटना है। तो गार्ड गिरा नहीं है, जो गार्ड कह रहा है कि मैं गिरा हूँ, गार्ड गिरा नहीं है, गार्ड भाग गया। बस अब तो फिर वहां ले गए क्योंकि 8:04 की घटना है। हो गया। अरे मैंने से है ना। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने ईवीएम से मुतालिक जो मसाइल उठाए हैं वो ईवीएम की एतबारियत पर बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता और इसमें डाला गया वोट कभी भी तब्दील किया जा सकता है। हमारा सवाल है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद इंतखाबी कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खामोश क्यों हैं? हमारी दरख्वास्त है कि ईवीएम के हवाले से इंतखाबी कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अवाम को वजाहत दे। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन हैं ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सब को वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है, और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार
सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। मुल्क भर में बाद नमाज जुमा करोड़ों मुसलमानों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुनज़्ज़म किए गए गांव-गांव शहर-शहर एहतजाज के बाद ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद परेशानी में पड़ गई है। मुल्क भर के मुसलमानों के एहतजाज के वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद मरकज़ी वज़ीर अक़लियती किरण रिजिजू ने एक वीडियो पीएम जारी करते हुए मुसलमानों को समझाने की कोशिश की। अपने वीडियो में मरकज़ी वज़ीर ने कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों को वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के ज़ाती मुफादात हैं वो इस एक्ट पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ये आम मुसलमानों की भलाई के लिए है। प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादत गाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाइयों और बहनों, यह अधिनियम किसी भी तरह से मजहबी तौर पर मुस्लिम या उनकी इबादत गाहों को नुकसान नहीं होने देगा। इस बिल से अल्लाह की राह में वक्फ की गई जायदादों की हिफाजत होगी और उसकी आमदनी से मिस्कीन, गरीब, बेवाह की खिदमत और मदद होगी, जो कि असल वक्फ का मकसद है। और आने वाले वक्त में इसकी आमदनी से ही स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। इस वक्फ बिल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज तरीके से काबिज है और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। ऐसे लोग ही भोले भाले देशवासियों को बहकाकर मुल्क के माहौल को बिगाड़कर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। हमको ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और भरोसा रखना है और देश की तरक्की की राह में बाधा डालने वालों से बचना है। जय हिंद। चारमीनार गुलजार हाउस के करीब दुर्गा ज्वेलर्स की सोने की एक और दुकान को यूपी की शातिर खातून गैंग ने जाली हॉलमार्क और जाली बिल दिखाकर चूना लगा दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मेरा नाम ट्विंकल है और मैं दुर्गा ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। मेरी शॉप गुलजार हाउस में है। कुछ दिन पहले रमज़ान के मौके पर मेरे पास दो लेडीज़ आई थी और दोनों लेडीज़ करीब 40 से 42 या फिर 45 साल की उम्र की थी। वो लोग इफ्तारी के टाइम पे आए थे और वो मेरे पास ये बिल के साथ में आए थे। उनके पास कान के झुमके थे आधे तोले के करीब। उनके पास बिल रहने के वजह से और आइटम पे हॉलमार्क रहने की वजह से मैंने उनका भरोसा किया और उनसे माल परचेज़ किया। हालांकि परचेज़ नहीं करते हैं, पर बिल के रहने के वजह से और उनकी थोड़ी हमदर्दी जताने की वजह से कि हमें अर्जेंट है, हॉस्पिटल में देना है, कोई एडमिट है, इसके चक्कर में पहली बात तो बिल था बोल के मैंने उनसे परचेज़ किया और उस पर हॉलमार्क भी था तो मैंने उनसे परचेज़ किया। और रही बात था वो रमज़ान का महीना, इफ्तारी के टाइम पे आए थे, मैंने उनका रोज़ा भी खुलवाया। वो करीब मेरे पास 10 मिनट बैठा, दोनों कस्टमर, दोनों लेडीज़ जो मेरे पास 10 मिनट बैठी भी थी, मैंने उनसे परचेज़ किया। करीब मैंने उन्हें 38 से 39,000 दिया था। फिर उसके बाद में जब मैंने आइटम को मेल्ट किया तो इसकी मेल्टिंग बैठी आधी से भी कम। मतलब ये 11 कैरेट का भी सोना नहीं है, 11 छोड़ के 10 कैरेट का भी सोना नहीं है ये ढंग से। इसकी मेल्टिंग बैठी सिर्फ 37%। मतलब इसमें मुझे आधे से ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके का कोई भी बिल आए, अब ये नाम की शॉप लखनऊ में सही में है पर ये मोबाइल नंबर उनका नहीं है और ये डिटेल शॉप वाले की नहीं है। ये लोग नकली बिल भी छाप रहे हैं इस तरीके से कि ताकि दुकानदार, अब जैसा हम लोग दुकानदार रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि अगर बिल है तो ही परचेस करेंगे वरना नहीं करेंगे, और अगर जिसके पास नहीं भी होता है तो हम उन्हें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि आप ये लाइए, ये प्रूफ लाइए, उनसे बात कराइए। तो ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो लोग ये नकली बिल भी बना रहे हैं। ये बना के हमें ऐसे आके वो लोग चूना लगा रहे हैं।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके की कोई भी बिल, चाहे येलो हो, चाहे वाइट हो, चाहे पिंक कलर की हो, जितने मेरे जानने वाले हैं उनके पास ये 3 कलर की बिल निकली है, येलो, वाइट और पिंक। मेरे पास येलो कलर की बिल आई थी और फिर मैंने कांटेक्ट किया मेरे जानने वाले एक ज्वेलर्स से जिनकी दुकान मल्लेपल्ली में है, जिनका नाम आरिफ एंड सन ज्वेलर्स है। उनका मुझे वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, तब मैं जाके मैं भी इसके ऊपर एक कार्रवाई कर रहा हूँ कि मुझे भी ये ऐसा चूना लगाया गया। और ये पूरी 1-2 लेडीज़ नहीं है, ये पूरी गैंग है। और जितना मैंने खगोला ये चीज़ के अंदर, जितना डीप में गया हूँ, मेरे लोगों से, मैं मेरे दोस्तों से बातचीत की है, ज्वेलर्स वालों से, मुझे मालूम चला करीब करीब ये 100 से ज़्यादा लोगों को दे चुके हैं और ये 1-2 साल से बेच रहे हैं। मेरे पास तो ये अभी अभी आए थे। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की बिल कुछ भी आए और उस पर अगर हॉल मार्किंग रहे और HUID नंबर ना रहे, सिर्फ मार्किंग रहे 8330 की और एक ट्रायंगल का सिंबल आता है BIS का, वैसा कुछ भी रहे, तो आप कृपया करके उनसे ना खरीदें। बिल रही तो भी ना परचेस करें। आप पहले उसकी तहकीकात कराएं, उसका एक छोटा सा पीस कट कराएं या फिर कस्टमर को बिठा के रखें या फिर आप कंप्लेन करें। अगर ऐसे कोई कस्टमर आपको दिखती है जो एकदम प्योर हिंदी बात करती है यूपी के लैंग्वेज में, तो आप सीधा उन पर डाउट कर सकते हैं आंख बंद करके। ये जो आप देखे वीडियो में वो लोग वही लोग और औरत थे क्या? वही औरत थी वो। आपको लोग जो वीडियो में देखे, मैं, मेरे पास जो व्हाट्सएप पे वीडियो आया था उसमें एक जेंट्स है, एक लेडीज है, पर वो जो लेडीज थी वो मेरे पास आई थी दूसरी लेडीज के साथ में, पर जेंट्स नहीं था।